ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੀ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨੀ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅਹਕਾਮ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਰਾਇਜ ਰੱਖਿਆ। ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਸਹਾਬੀਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਫ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਹਾਬੀਆ ਔਰਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਬੁਲ ਨਿਕਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ ਆਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਪਨੇ ਰਾਇਜ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਬਈ 4 ਬੰਦੇ ਆਓ, ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਲੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਵੇਂ ਆਓ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਅਫਸੋਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਓ, ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਨਿਕਾਹ ਦਾ। ਬਾਬੁ ਨਿਕਾਹ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਮਸਾਏ ਦੇਖਣਗੇ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਫਲਾਣ ਦਿਨ, ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਗਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਆ, ਐਲਾਨੇ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਜਾਵੇ ਢੋਲ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਬਿੱਦਤ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਬਿੱਦਤ ਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਿੱਦਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਓ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪਿਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿੱਦਤ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਨਤ ਉਹ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਨਸਾਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿੱਦਤ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਬਿੱਦਤ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਬਿੱਦਤ ਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਹਾਲੇ 1-2 ਹਦੀਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੌਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੀ ਗਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ। ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆ, ਬਾਬੁਲ ਫਿਤਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬੁਲ ਫਿਤਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਮਾ ਦੀ ਗਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਮਰਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਲਮਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਜੁਮੇ ਤੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਐਡੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਕਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੌਫ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਹਦੀ, ਹਕੀਕਤ ਆ। ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ
हदीस तो बयान कर देनी चाहिए ना कि प्यारे नबी, मीठे मीठे नबी की मीठी मीठी बातें हैं जी, मीठे मीठे फरमान, तो वो तो सुनाने चाहिए सारे ही। आपदे सारे फरमान मीठे मीठे हैं, कुछ कड़वे कड़वे तो नहीं हैगी। मीठे नबी की मीठी बातें, मीठी मीठी सुन्नतें हैं जी। वो दूए अहले हदीस का कहते जी, जिसको ये कहते हैं ना मीठी मीठी सुन्नतें, ये हैं मीठी मीठी बिदतें। मौलवी एक दूए नाल बड़ी चौं जड़ाई रखते हैं ना। तो सानू तो असी तो बई सारे ही मौलवियों के बारे च इक्को जिहा ही अकीदा रखते हैं कि अल्लाह इन्हों हदायत दे देवे, क्योंकि सारे ही कुरान और हदीस की कोई कित्यों पूरे कुरान और सारिया हदीसां नूं कोई मौलवियों का फिरका भी तस्लीम नहीं करता। कोई कितों किसी का इनकार करता, कोई कितों कुरान का, अपने मतलब दियाँ हदीसां, अपने अकीदे के मुताबिक कुरानी आयात उन्होंने बारे करते रहते। जिदा मैं अर्ज कर रहा कि अच्छा जादू वाली जड़ियाँ आयतां आ, यदा सारे ही मौलवी इनकार करते, कहते नहीं सरकार तो जादू हो गया सी, सरकार नूं वो जादूगर कहते सी काफर। जबकि अल्लाह ताला की कह रहे हैं कि वो कहते हैं नबी ते जादू होया। जालम और गुमराह लोग कहते हैं नबी ते जादू होया। ये कहते नहीं जी, वो कहते सी नबी जादूगर है। जबकि कुरान की आयत पढ़न कितने क्या उन्होंने कि नबी पाक जादूगर है। इन्होंने अज तक कौम का जहन यही बनाया हुआ कि उत्थे माई दौड़ी जा रही है, कह रही है इत्थे एक जादूगर आ गया, वो डर तो मैं शहर छड्ड के जा रही हूँ। किहड़ी आयत का तर्जमा, किहड़ी आयत की तफसीर है? झूठ बोलते हैं जी। 8 नंबर 9 नंबर आयत, वो किताब पकड़ना जी, वो आयत भी तुहानूं पढ़ के सुनाना है दरम्यान नहीं। वो है ना, जो तुहानूं उन्होंने कहना तुसीं देखी है, फिर तुसीं की कहना देखी नहीं। पीरां ने कही, उन्होंने कहना पीर इदां ही कहंदे रहिंदे। उन्होंने कहना पीर तो कहंदे ही रहिंदे, क्योंकि पीर करदे ही मन घट गल्लां आ, कुरान हदीस तो बगैर मौलवी गल नहीं करते। जबकि कुरान हदीस का नाम बदनाम किया हुआ इन्होंने। ए देखो जी सूरत फुरकान 8 नंबर 9 नंबर आयत लिखी हुई है, थले तर्जमा लिखा हुआ। और कहा जालमों ने, है मुसलमानों तुम तो एक ऐसे आदमी की पैरवी कर रहे हो जिस पर जादू किया गया है। देख लो या नबी, ये लोग आपके लिए किस किस्म की मिसालें मारते हैं। ये गुमराह हो चुके हैं और सही रास्ते पर चलने की इस्तात नहीं रखते। नतीजा की ये था कढ़िया उन्हें किताब वाले, जादू ज़दा कहना कफ़ारो मुशरिकीन का अकीदा है कि नबी नूं कहना कि ते जादू हो गया, एक कुफार दा ते मुशरकां दा अकीदा है, मुसलमानों का नहीं। जबकि साढ़े उलमा का भी यही अकीदा, कहते जादू हो गया सी नहीं पाक, क्योंकि जादू पर हाक्या करने वाला काफर है कि ये तो सरकार ते भी हो गया। क्यों इन्होंने ये बनाई है गल अपने तवीज़ बेचण लई कि जादू हो जाता है। जबकि मुसलमानों का की अकीदा कि भाई जिहड़ा सही अकीदे वाला मुसलमान है वो भी नहीं होंदा जादू, अल्लाह के वलियां ते नहीं होंदा, ये नबियां ते कर रहे हैं। जबकि सबूत आ जादूगर राय राजू लाहौर का मशहूर जादूगर सी, बड़ा जोगी सी, जादूगर सी। ते हज़रत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह अन्हु की नालैन की नोक के नीचे दाता साहब ने जुत्तियां मार के उन्होंने मुसलमान किया। सरकार दी दाता साहब रज़ी अल्लाह अन्हु दी जुत्ती ते उहदा जादू नहीं चलिया, नहीं तो वह करता ना कुछ जादू। जुत्ती उहदे लग लग के मूँह ते उहनूं ला के लै आई थल्ले, उहदे ते जादू कर दिंदा, जुत्ती नेड़े ही ना आउंदी, उत्थे रोक दिंदा। फिर दूसरा नंबर जादूगर जयपाल जोगी अजमेर शरीफ वाला, जयपाल उसका नाम सी, बड़ा जोगी सी। अग बरसाई उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज ते, पत्थरों की बारिश की थी, फिर टक्कर मारी, पहाड़ दे विचों लंघ गया, रस्ता बनता चला गया, बड़ी दहशत पाई। फिर आप दे उत्तों दी उड़न लग पिया, सज्जे खब्बे जावे। फिर कहने लगा सरकार उड़ तो नहीं सकते, चलो मैनू उतार के ही दिखाओ। हुण आपने की कीता, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जूती की मार खा खा कर कदमों में गिरकर तौबा करता है
कौन? जादूगर जयपाल जोगी। हुण सरकार दे गुलाम ते जुत्तियां मारदे आ जादूगरां दे, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ बड़े जादूगर ਆ कि वो परवाज कर रहे आ, पहाड़ां चों रस्ता बना दिंदे आ, अग दी बारिश कर दिंदे आ, ते सरकार दे गुलाम उन्हां दे जुत्तियां मारदे आ, और वो मुसलमान हुंदे आ। ते आका ते एक यहूदी औरत ने जादू कर दिता, ਜਿਹੜੀ ना उड़ सकदी सी, ना पत्थर भरा सकदी सी, ना अग बरसा सकदी सी। एक औरत नकम्मी जही यहूदी औरत, उन्हें सरकार ते जादू करके सरकार पूरा साल बीमार रहे। तो बुखारी शरीफ ने कहानी जोड़ के सारी लिख दी थी, जबकि यहूदियों ने जोड़ी कहानी। क्यों जोड़ी उन्होंने? कि मुसलमान कहते आ साडा नबी नबियां दा सरदार है। उन्होंने कहानी जोड़ ली कि देखो तुसी कहते हो नबियां दा सरदार है साडा नबी, जबकि वो तो साडी एक औरत ने बीमार कर दिता जादू करके। और साडा नबी मूसा अलैहिस्सलाम ये सरदार है नबियां दा कि सारे मुल्क दे जादूगर आए। तुहाडी किताब कहती है कुरान पाक, अल्लाह ताला कह रहा कि जिथों मर्जी ले आओ जादूगर इकट्ठे करके, मेरा नबी गालिब रहूगा। साडा नबी मूसा अलैहिस्सलाम तो गालिब रहा, सरदार साडा नबी है कि तुहाडा नबी है। तो साढ़े अन्ने मौलवियां नूं अकल नहीं आई भी असीं की करन लगे हैं। इन्होंने कहा जी हाँ जी नबी पाक ते जादू हो गया सी, आप दियां जुल्फां मुबारक उतर गईयां, आप दी याददाश्त खराब हो गई सी, आपने कई काम कीते हुंदे सी ते समझदे सी कीते ही नहीं, ते कई काम नहीं कीते हुंदे तो समझ लेंदे सी कीते होए आ। वो खुदा दे बंदे हो, फिर तो कुरान च फतूर आ गया। उस साल च क्या कोई वही नहीं आई? सरकार समझते होणगे लिखाती है, जबकि लिखाई नहीं होनी। उम्मुल मोमिनीन तक दा इन्होंने नौज़ बिल्ला गलत बयानी की थी कि आप नूं याद ही नहीं रहिंदा सी भी केस माई दी बारी आ, असीं उन्हां दी बारी भुगता हटे, जबकि गए नहीं हुंदे सी। कईयां दे गए हुंदे सी तो पता नहीं रहिंदा सी भी गए कि नहीं गए। इस तरह किन्ने काम, इस तरह तो सरकार समझदे होणगे वही आई सी लिखाती होनी, लिखाई नहीं हुंदी होनी, तो किन्ना तो कुरान रह गया होना। फिर कई बार उदा ही लिखाते होने भी खबर आ भी वही आई है। अल्लाह माफ़ी देवे, मौलवियां नूं अल्लाह हदायत दे देवे, लेकिन हदायत मंगे बगैर नहीं आउंदी। हदायत तलब करनी पैंदी आ, कोशिश करनी पैंदी आ। इनू हासिल करने लिए भाई सफ़र करना पैंदा, किसी कोल जाना पैंदा। आपे ही अल्लाह ये नहीं दिंदे, हर नेमत अल्लाह खुद दे दिंदे। दौलत, औलाद, हर चीज़, हर नेमत, सेहत, अखां, पैर, हाथ, जो नेमतां अल्लाह बगैर मंगियों दे दिंदे। लेकिन हदायत जिहड़ी आ, नूरे ईमान जिहड़ा, ये हासिल करना पैंदा और उन्हां लोगों कोल जाना पैंदा जिन्हां नूं ये नसीब आ, फिर ये हासिल हो।